سکینہ نہ رو بولے شہے خوش نثار اتنا سکینہ نہ رو تو ہے ابھی پیاری میرے جیتے جی آنسوؤں کی یہ جھڑی پیاری میرے جیتے جی آنسوؤں کی یہ جھڑی کدھر ہے خیال اتنا سکینہ نہ رو آتا ہے منہ کو جگر رنج نہ دے اس قدر آتا ہے منہ کو جگر رنج نہ دے اس قدر باہیں گلے سے نکال اتنا سکینہ تیری خبر گیری کو باپ نہ ہو تو نہ ہو تیری خبر گیری کو باپ نہ ہو تو نہ ہو کافی ہے یہ اتنا سکینہ نہ رو چاک گرے بانا کر خاک نہ مل چہرے پر چاک گرے بانا کر خاک نہ مل چہرے پر ہوتا ہے دل پائمال اتنا سکینہ نہ رو ارے میں تو کٹاؤں گا سر مجھ سے بغیر پیشتر میں تو کٹاؤں گا سر مجھ سے مگر پیشتر تیرا نہ ہو انتقال اتنا سکینہ نہ رو بولے شہے خوش کے ساتھ اتنا سکینہ
کے
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أغنار المظلوم كبرى صالحین و صالحات کے آپ رہے ہوئے آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہوگی ابھی آپ نے پرسہ بھی دینا ہے جلوس بھی برابر ہوگا شبیہ زلزلہ بھی برابر ہوگی میں تو صرف 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے دنیا میں دیکھا ہے جب کسی کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے دوست آ جاتے ہیں احباب آ جاتے ہیں جس سے تعلق نہ ہو وہ بھی آ جاتا ہے سب آ کر پرسہ بھی دیتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ یہ دنیا سے مرنے والا یہ دنیا سے گزرنے والا کیسے گزرنے والا مگر غریب زہرا کی مظلومیت یہ ہے کہ میر انیس نے 2 مصرعے کہے کربلا میں یہی وقت ہے کوئی باقی نہیں ہے سب جدا ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی غربت کا اعلان کیا اور جانتے ہیں کیا کہہ کر کیا محسوس کیجیے گا ان جملوں کو عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا حسین مولا فرما رہے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا دستور زمانہ ہے آپ کے یہاں بھی یہ رسم رائج ہوگی کہ جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے قبرستان جاتا ہے تدفین ہو جاتی ہے جب جنازہ لوٹ کر جب تدفین کرنے والے لوٹ کر واپس آتے ہیں تو دروازے پر بہن اور بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے پوچھتی ہیں دفنا کر آ گئے کیسے دفنایا تو وارث بتاتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اتنے چاہنے والے تھے کسی نے جنازہ اٹھایا کسی نے کھاگا دیا کسی نے لحد میں اتارا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ چاہنے والے جو اتنے تھے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب لوٹ کر سید سجاد مدینے آئے ہوں گے اور فاطمہ صغریٰ نے پوچھا ہوگا بھیا میرے بابا کو دفنا کر آ گئے تو سید سجاد نے یہی تو کہا ہوگا اے میری بہن دفنانا تو کچھ ہمیں تو کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں تھا ہمیں تو کسی نے پرسہ بھی نہیں دیا میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا گیا رونے والے آپ خاک پر بیٹھے ہو فرش پر بیٹھے ہو اللہ مگر آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں ہو آپ کے لیے تو بہت اہتمام کیا گیا زیادہ زحمت نہیں ہے 2-4 جملے ہیں بس زیادہ نہیں لیکن ذہن میں یہ رکھ کر سوچئے گا سنیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر گزرے گی آپ گھر جائیں گے بستر پہ سو جائیں گے مگر علی اور بطول کی بیٹی رات بھر ہوگی ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے ایک لکڑی ہوگی خیمے جلے ہوں گے اور خیموں کی گرد گھومتی ہوگی
اور فرات کا رخ کر کر کے کہتی ہوگی عباس جب تک تو زندہ تھا ہم سوتے تھے، مگر عباس تیرے جانے سے آ کر دیکھ تو صحیح آج ہم جاگتے ہیں دشمن آرام سے سوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔ خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، اور اس گریے کے صدقے میں اسی برس کربلا المعلیٰ حسین سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ عزاداروں، کربلا میں ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین عباس کے کستے ہوئے بازو بھی اٹھا چکے اور عباس کا لاشا بھی اٹھا چکے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ نقل کہتے ہیں کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو حسین جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو جانتے ہیں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں، جب جاتے تھے تو ہر شہید ہونے والے کی لاشیں کو جب اٹھاتے تھے تو اسے پشت ذوالجناح پر نہیں رکھتے تھے بلکہ ایسے ہاتھ پر اٹھا کر لاتے تھے۔ جس کے لاشے کو لائے حسین ایسے ہاتھ پر اٹھا کر لائے، مگر جب 18 برس والے میں سزا دی تو ہمیں نظر پہ گرتا ہوا تو ایک مرتبہ اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اور جب لاشا اٹھانا چاہتے تھے تو اٹھا نہیں پاتے تھے۔ خیموں کی جانب دیکھ کر کہتے تھے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بینائی چلی گئی ہے، اور کوئی چاہنے والا ساتھ نہیں رہا۔ تو ایک مرتبہ فضہ کو بلایا اور بلا کے فرماتے اماں مدینے سے چلتے وقت میں نے ایک امانت آپ کے حوالے کی تھی، وہ امانت لے کر آ جائے گا، مگر خیال رہے میری زینب کی اس پر نگاہ نہ پڑ رہا۔ ایک مرتبہ فضہ گئی، صندوق کو کھولا اور ایک گٹھڑی کو نکال کر جو چلی تو شہزادی کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا اماں کیا ہے؟ اور حسین فرما رہے زینب کو پتہ نہ چلے۔ شہزادی پوچھ رہی ہے بتاؤ کیا ہے؟ تو فضہ خاموش ہے۔ پھر پوچھا بیوی اماں اس میں کیا ہے؟ تو خاموش۔ اب زینب کا دل گھبرانے لگا، ایک مرتبہ کہنے لگی اماں فضہ تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کی قسم ہے بتا اس میں کیا ہے؟ اتنا سنا تو تڑپنے لگی فضہ اور گٹھڑی کو آگے رکھ کر کھول دیا۔ اب جو گٹھڑی کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک کرتا ہے، اس کرتے کو اٹھایا بغور دیکھا اور رونے لگی۔ تو فضہ پوچھنے لگی شہزادی روتی کیوں ہو؟ تو کہا اماں بتاؤ روتی کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ کرتا میری ماں فاطمہ زہرا نے ہاتھوں سے سیا ہے، وہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، تو میں پوچھتی تھی اماں یہ کرتا کس کا ہے؟ تو کہتی تھی تیرے بھائی حسین کا ہے۔ تو میں پوچھتی تھی اماں ماں تو اپنے بچوں کا کرتا سیتی ہے تو خوش ہوتی ہے، ارے تو روتی کیوں ہے؟ تو میری ماں کہتی تھی ارے جب شمر سینے پہ سوار ہوگا سر میں مارے گا میرے حسین نے یہی کرتا پہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ تھکے ہوئے مجھے اندازہ ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر رونے والوں ایک مرتبہ لے کے چلی کرتا، جانتے ہیں کیسے کرتا پرانا کرتا ہے، اس لیے حسین نے تبدیل کیا کہ اگر لوٹنے والا آئے تو پرانا سمجھ کے چھوڑ کر چلا جائے۔ حسین نہیں چاہتے کہ حسین کا لاشا کربلا میں، میرے پاس الفاظ نہیں، مقتل میں لکھا مگر میں کہہ نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ حسین نے لباس کہنا تبدیل کیا اور تبدیل کرنے کے بعد ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کیا، بیویوں کو خدا حافظ کیا۔ میرا دل کہتا ہے یہاں دو عالم دین موجود ہے، میرا دل کہتا ہے کہ عرض کروں تو جب کوئی جاتا تھا میدان میں اور خدا حافظ کرنے کے لیے خیموں میں آتا تھا تو بیویاں کہتی تھی جا مگر یہ تو بتا جاؤ ہمیں اس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
तो हुसैन आगे बढ़कर कहते होंगे बीवी मैं हूँ, अली अकबर आगे बढ़ जाते होंगे बीवी मैं हूँ, अब्बास आगे बढ़ जाते होंगे बीवी मैं हूँ। मगर जब हुसैन ने कहा होगा बीवी खुदा हाफिज और बीवियों ने पूछा होगा मौला ये तो बता जाइए हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, तो यही तो कहा होगा अरे बीवियों तुम जानो और सैयद सज्जाद जाने, अरे सज्जाद जाने तुम्हारे पर्दे जाने। अब बस हुसैन का सलाम आखिर है, सलाम आखिर किया तो फरमाने लगे बीवी से बीवी मैं चाहता हूँ अपने बेटे से एक बार मिल लो, मगर चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तो शहजादी फरमाने लगी भैया आप इमाम हैं, वो आपका फर्जंद है, मौला आप जाइए उससे बात कीजिए, मुझे दरमियान में ले जाने की जरूरत क्या है, बहुत रोएंगे आप। एक मरतबा हुसैन फरमाने लगे बीवी आपने गौर नहीं किया, सर से पैर तक मैं जख्मी हूँ, मुझे ऐसा न हो बीमार बेटा जब इस हालत में देखे तो कहीं मुझसे चिमट न जाए, तो कोई तो हो जो मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दे, कोई तो हो जो मेरे लाल को मुझसे जुदा कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप चलिए मौला की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा मौला सैयद सज्जाद अगर आपसे चिमट जाए तो आप चाहते हैं कि कोई तो हो जो उसे जुदा कर दे, मौला तो कोई इंतजाम किया होता जब सीने में सोने वाली आपसे निपट जाए तो शिवर तमाचे तो मारे, अरे कोई तो होता तो उस बच्ची को प्यार से जुदा कर देता। लेकर आए शहजादी ने शाने को हिलाकर फरमाती है बेटा सैयद सज्जाद आंखें तो खोलो। एक मरतबा आंखें खोली, का फूफी अम्मा कैसे आना हुआ, का तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने के लिए आया। एक मरतबा अपने बाबा को देख, सर से पैर पर देखो और देखने के बाद एक जुमला कहा मुझे अंदाजा है आप बहुत थके हुए हैं, रात भर के जागे हुए हैं, रात भर गिरिया उजारी में आपने गुजारा है, मगर क्या करूं अगर ये जुमले नहीं सुना है आपने तो हक अदा नहीं हो पाएगा। आपका जिस अंदाज से दिल चाहे उस तरह से सुनिएगा। एक मरतबा जब सर से पैर तक निगाह की सैयद सज्जाद ने और लहू लहान देखा तो ताकत को जमा किया और उनका कहने लगे फूफी अम्मा ये मेरा बाबा इतना लहू लहान क्यों है, तो कहने लगी मेरे लाल सर से पैर तक तेरा बाबा जख्मी है, तो ताकत को जमा करके कहने लगे आईना आईना अबुल फजल अब्बास, तो फूफी मेरा चचा कहाँ है, फूफी मेरा चचा कहाँ है। हुसैन आगे बढ़ के फरमाते अब्बास अकबर कहा ताकत को अब हर एक का नाम लेते रहे। हुसैन ने एक जुमला कहा तब मेरे लाल किस किसका पूछेगा, बस इतना याद रख या मैं बाकी हूँ या तू बाकी है। अपनी अजमत को पहचानिएगा कि मेरी माँ बहनें मुसलसल आती रही, आप अपनी अजमत को पहचानिएगा। एक मरतबा हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया और लगाकर फरमाते मेरे लाल खुदा हाफिज अब तेरा बाबा जा रहा है, अब ये वापस लौट कर नहीं आएगा। एक जुमला की खिदमत में अर्ज कर दूं, ये हुसैन की शहादत आपके पर्दे के लिए है, ये हुसैन की शहादत इस दीन की बका के लिए है, इस दीन को मजाक मत बनाइए। ये भी हुसैन की शहादत मेरी माँ बहनों के पर्दों के लिए है, अपने पर्दे का लिहाज कीजिए और बस इतना याद रखिए जब सर पे दुपट्टा न हो, जब सर पे चादर न हो तो मुझ सैयदजादे का ये जुमला याद रखिएगा कि हुसैन ने सीने से लगाकर कहा बेटा सैयद सज्जाद जब लौट कर मदीने जाना और मेरा चाहने वाला कोई नजर आए तो उसे कहना तुझे मेरा बाबा सलाम कहता था और कहता था ए मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना हुसैन की प्यास, हुसैन की प्यास को याद कर लेना। एक मरतबा मौला ने आखिरी जुमला कहा मेरे लाल जब लौट कर मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों से कहना जब कभी तुम्हें अपने मुर्दे पर रोने का दिल चाहे हुसैन की गुर्बत को याद करके रो लेना। अजरों को अल्लाह चले दरमियान में से सब खत्म कर देता हूँ। एक मरतबा खुदा हाफिज किया, आए दाएं बाएं देखा, इसलिए कि जब कोई जाता था तो हुसैन ही तो सवार कराते थे, अब कौन है जो हुसैन ही को एक
एक मरतबा अली की बेटी आगे बढ़ी, कहा भैया ये बहन मौजूद है, ये आगे बढ़कर आपको सवार कराएगी। एक मरतबा हुसैन जुलझना पर सवार हुए और जुलझना से जुमला कहा, वो मंजर भी आप भी देखेंगे यहाँ पर। एक जुमला कहा, हर बार तुझे 2 बार जहमत दी है, तुझ पर सवार हुआ, मैदान में गया, लाशें लेकर आया, अहरावार अब 2 बार नहीं पकड़ते, 1 बार की जहमत है, तुझे लेकर जाना है, वापस लेकर भी नहीं आना। हुसैन तुझे ज्यादा जहमत नहीं देगा, चल मुझे ले चल। मगर जुलझना के कदमों को आगे नहीं बढ़ा तो फरमाने लगे, मुझे अंदाजा है तू थक गया होगा। एक मरतबा जुलझना ने गर्दन को झुकाया, गोया कह रहा था मौला थका नहीं हो, मगर मेरी कुछ मजबूरी है। अब जो हुसैन ने सीन से जमीन की तरफ देखा तो क्या देखा, सीने में सोने वाली जुलझना की सुबह से लिपटी थी और कह रही थी, ऐ जुलझना मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। अजरबुल अल्लाह हकरा करना है मेरी का, ऐ जुलझना मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। एक मरतबा हुसैन आए, मक्तल का जुमला रिवायत सुनिएगा, आए जमीन पर, शहजादी को लिया और कहने लगे, मेरी लाल तू मुझे क्यों रोकती है? कहा बाबा जो गया है सुबह से वो वापस नहीं आया। कहने लगे, शहजादी तेरे होंठ बहुत खुश्क लग रहे हैं, मुझे जाने दे, शायद मैं तेरे लिए पानी का कुछ इंतजाम करूं। अल्लाह अकबर, आप न जाने कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे बीबी ने सुना कि बाबा कह रहा है मुझे जाने दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करके ला सकूं। एक मरतबा बीबी तड़प गई, तड़प के उठी जमीन से और कहने लगी, बाबा अब मुझे पानी नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरा चचा भी यही क्या कर गया था, मगर फुरात के किनारे सो गया, बाजू कर गए, मेरा चचा वापस नहीं आया। एक मरतबा सीने से लगा, लेट कर खाके गरम पर, बच्ची को दिलासा दिया, शहजादी की आंख लग गई। चंद लम्हे गुजरे, एक मरतबा शहजादी तड़प कर उठी और कहा, बाबा आप जानना चाहते हैं, चले जाएंगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं। हुसैन फरमाने लगे, मेरी लाल अभी तो आप रोक रही थी, अभी खुद ही जाने की बात कर रही है। कहा बाबा मेरी आंख लग गई थी, मैंने देखा मेरी दादी फातिमा और वो कह रही है, सकीना हुसैन को न लो, इसलिए कि आज के दिन के लिए चक्किया पीस के पाना है, आने दे मेरे हुसैन को। सवार हुए, सबको फिर सलाम किया, आ गए मैदान में, बस आखिरी मंजिल पर ले आया, आ गए मैदान में, खुतबा दिया। खुतबे का जब असर न हुआ तो ये भी सुनते जाइए कि मौला ने कहा, मुझे मालूम है मेरी तकरीर का तुम पर असर नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भर चुके हैं। अल्लाह अकबर, जिसका शिकम माले हराम से भरा हो उस पर ईमान की तकरीर का असर नहीं होता। क्या तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं, तुम पर असर नहीं होगा। मगर मैं तो चाहता था कि मैं अकबर का खून भी माफ कर दूं, असगर का खून भी माफ कर दूं, अब्बास का खून भी माफ कर दूं। अगर तुम राह रास्त पर आ जाओ तो लोग रोने लगे और रोकर कहने लगे, हम जानते हैं ये सारी फजीलत है, मगर अभी हम मजबूर हैं। तो हुसैन ने कहा, तुम दुनिया के बंदे हो, तुम दुनिया के गुलाम हो, मैंने हुज्जत को तमाम कर दिया। ये कहकर बैठे जुल्फ़िकार पर और जुल्फ़िकार को मैंने आप किया। वक्त नहीं है, मौका नहीं है कि मैं हुसैन की जंग आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मगर एक जुमला सुनते जाइएगा। इतना कत्ल किया हुसैन ने कि जब तलवार उठाते थे तो कोहनियों से खून बहता हुआ जाता था हुसैन। एक मरतबा जब कर चुके जिहाद तो जानते हैं क्या हुआ, करबला के मैदान में सदा बुलंद हुई, या अल्लाह को हर नफ्स इत्मीनान वाले लफ्ज़ पलट अपने रब की बारगाह में। इतना सुना गोया हुसैन कहने लगे, तलवारों आओ, नेज़ो आओ, पंछियों आओ। एक किताब है करबला का आदाब शुमार, मुझे पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत देर तक पढ़कर मैं गिरिया करता रहा। आदाब शुमार की जब बात आई तो इंसान लिखने वाले ने लिखा कि ये जो लश्कर आया था, एक तादाद ऐसी थी जो ऊँटे पर सवार है, एक तादाद ऐसी जो घोड़े पर सवार है, एक तादाद ऐसी है जो शमशीर के साथ है, एक तादाद ऐसी है जो नेज़ों के साथ है, एक तादाद ऐसी है जो तीरों के साथ है। मगर बहुत तड़पेंगे आप, एक तादाद ऐसी
तलवारें चली, नेज़े चले, और एक मरतबा ज़हरा का नाम ज़ख्मों से चूर चूर हो गया। सर से पैर तक कोई जगह बाकी न बची। मैं नहीं कह रहा। साथ में इमाम जब गिरिया कर रहे थे रोज़े आशूर, तो किसी चाहने वाले ने कहा, मौला कितने जख्मी थे हुसैन, कितने जख्मी थे हुसैन। मासूम की अंगुष्ठ मुबारक में एक अंगूठी थी, उसे उतार के जमीन पर रखा और रखकर फरमाने लगे कि जितना इसमें नगीना है, मेरे जब हुसैन के बदन पे इतनी भी जगह बाकी न थी, सारा बदन जख्मी था। एक मर्तबा जब तीर तलवार चलने लगे, मगर ये हुसैन है, वक्त का इमाम है, घोड़े की पुष्ट बरकरार है, कायम है। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद आगे बढ़ा, कहने लगा कोई नहीं है तुमने जो हुसैन को ज़ीन से जमीन पर ले आए। हाँ, थके हुए हैं आप, मुझे अंदाजा, मगर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। एक मर्तबा कहा तुम में कोई नहीं जो इसे ज़ीन से जमीन पर ले आए। सब खामोश। इब्न ज़ियाद की निगाह पड़ी हुरमला पर। हुरमला के करीब गया और जाकर कहा, हुरमला एक तू ही है जो हुसैन को ज़ीन से जमीन पर ले आएगा। अब रात रिवायत आप बर्दाश्त कर नहीं पाए थे, मैंने छोड़ दी थी। जब मुख्तार ने गिरफ्तार किया था, हुरमला को तो पूछा था, बेटा तूने क्या किया? तो वो 3 तीर याद है आपको? ऐसा तीर है कि घोड़े को लगे तो घोड़े की गर्दन तोड़ दे, ऊंट को लगे ऊंट की गर्दन को तोड़ दे। हुरमला ने कहा, मुख्तार जब मुझे हुक्म मिला कि हुसैन को ज़ीन से जमीन पर लाना है, तो मैंने वही तीर निकाला जो शहजादा अली असगर के गुरु पे चलाया था। मैंने वही तीर निकाला जिसने अब्बास की पसलियों को तोड़ दिया था। हुरमला का ये जुमला सुनकर मुख्तार अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और कहने लगे, मैं तो सुनता आ रहा हूँ, मेरे मौला के बदन पर तो कोई जगह बाकी न थी, तो फिर तूने निशाना कहाँ लिया? एक मरतबा हुरमला खामोश हुआ। मुख्तार कहने लगे, बता। कहने लगे, हाँ सारा बदन तो बाकी था, सारे बदन पर तो जख्म थे, मगर हाँ एक हुसैन की पेशानी थी जो बाकी थी, मैंने निशाना लिया। अब जो तीर चला हुसैन की पेशानी में लगा। हुसैन कभी दाए कभी बाएं, इमाम ज़मान फरमाते हैं, सलाम उस पर जो नज़ीर पर, नज़ीर पर। अजरों को मरेगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हुसैन का वास्ता बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मर्तबा जब ज़ीन से जमीन पर आने लगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक मर्तबा जब ज़ीन से जमीन की तरफ चले, रिवायत का मैं एक लफ्ज़ का पहले दिन से आज तक जिम्मेदार हूँ। जैसे हुसैन ज़ीन से जमीन पर आने लगे, किसी ने तलवार आगे बढ़ाई, किसी ने खंजर आगे बढ़ाया। रोने वालों, एक मर्तबा हुसैन को शायद इतनी देर ज़ीन से जमीन की तरफ आने में न लगी हो जितनी देर हुसैन को खंजरों से जमीन तक आने में लग गई। दाएं पसलियां बाएं चली गई, बाएं पसलियां दाएं चली गई। बस खत्म कर दिया मैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा। एक मर्तबा कहा, कोई है जो हुसैन का सर तन से जुदा कर दे। सुलझना आएगा, वो जुमले बाकी है जब सुलझना आएगा, और उसी पे शबीह सुलझना बरामद होगी। मगर ये जुमला सुनते जाइए, गिरा गुजर जाए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, दो आलिम दीन मौजूद, बैठने के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, एक काफ ऐन दाल, काद, कायद, कूद, एक है जीम लाम सीन, जलस, मजलिस, जालिस। दोनों में जानते हैं फर्क क्या है? अल्लाह मैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। एक मर्तबा जानते हैं क्या हुआ? मौला ने जब सलाम किया तो कहा, सलाम है उस पर कि जिसके सीने पर शिमर सवार हो गया था। मगर लफ्ज़ जानते हैं क्या इस्तेमाल किया? जालिसुन का इस्तेमाल किया। जालिस और कायद में एक ही फर्क है, कायद में एहतराम होता है, जालिस में जिनको शहीद में
मैं जीता जमीन सीना ज़हरा के लाल पर सवार बैठा। हुसैन ने गिरबान को छोड़ा, जुमैर के सीने को देखा, कहा मुझे यकीन हो गया तू ही है जो मेरा सर तन से जुदा करेगा। रोना ना आ रहा हो अगर आपको, गर्दन झुका लीजिएगा, रोने जैसी चेहरा ही बना लीजिएगा, और रोना जब आए हाय जरूर कीजिएगा, हाय जरूर कीजिएगा। ये आखिरी पुरसा है इस अज़ा खाने में, इस अय्याम अज़ा का, इस अशरा मुहर्रम का, हाय जरूर कीजिएगा। एक मरतबा जानते क्या हुआ, शुगर ने हुसैन के बालों को पकड़ा, सर पे उठाया, खंजर को निकाला, खंजर को देखा, सर हुसैन को देखा, सर को छोड़ दिया, अल्लाहु अकबर, सर को छोड़ दिया, उधरा सीने से ढूंढने लगा कुछ, न जाने क्या ढूंढ रहा था। अगर रिवायत न होती खुदा की कसम में न पड़ता। एक मरतबा ढूंढने लगा, तारीख परेशान है, मुहर्रिख हैरान है, ये ढूंढ क्या रहा है। जानते हैं क्या ढूंढा? एक मरतबा पत्थर ढूंढा, और पत्थर को ढूंढने के बाद उस पर खंजर को मारा ताकि धार खराब हो जाए, खंजर खुद हो जाए। आया फिर बैठा, बालों को पकड़ा, उठाया, ज़िबा किया नहीं, गलत है, ज़िबा नहीं किया, ज़िबा नहीं किया। ज़िबा करता शायद इतना न रोता। सर को उठाया, पसे पुष्ट खंजर को लेकर गया, एक ज़रब मारी, दूसरी ज़रब मारी, तीसरी ज़रब मारी, ज़रबे मार मार कर ज़हरा के लाल के सर को तन से जुदा कर दिया। मैंने बहुत आराम से कहा, इसीलिए कि ताकत मैंने अपने जुमले के लिए समेटी, सर तन से जुदा कर दिया। एक मरतबा ज़मीन कर्ब भला के जलजला आने लगा, जिस पत्थर को उठाया जाता खून ताज़ा उबलता, आसमान से खून की बारिश होने लगी। होने वालों, एक मरतबा बस ये मजलिस खत्म हो गई, बस एक जुमला सुनिएगा। जानते हैं क्या हुआ? बस इसी जुमले पे शबीह सुलझना बरामद हो जाएगी। जानते हैं क्या हुआ? सुना दूं क्या हुआ? आप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या हुआ? जब हुसैन जीन से जमीन पर आए थे तो एक मरतबा हुसैन का जुलझना हुसैन के गिर्द घूम रहा था, तवाफ कर रहा था कि कोई करीब ना आ जाए। हाँ, जुमला सुनिएगा, ज़ियारत की जगह जुलझना की। एक मरतबा गिर्द घूम रहा था। दो जुमले सुनाऊंगा, पहले जुमले पे मत आइएगा जरा, दूसरा जुमला जब जुलझना खैमे में जाएगा तब लेकर आइएगा। जानते हैं क्या हुआ? एक मरतबा जुलझना के पास इस पे बाबू का इधर जुलझना करीब हुआ। एक मरतबा गरीब ज़हरा ने अपने दोनों हाथों को उठाया और सुलझना की गर्दन में डाल दिया। जैसे सुलझना की गर्दन में डाला तो सुलझना ज़बान पे हाथ से कहने लगा, मौला हुक्म कीजिए, आपने कहीं जाना है? तब तक सुलझना मुझे जरा सा ऊपर उठा ले। कहा, मौला अगर नजर जाना है तो बताइए, अगर आपने मदीने जाना है तो बताइए। बहुत डर पे गया, मौला कहाँ जाना है? मुझे हुक्म कीजिए, आपको भी ले जाऊंगा। हुसैन फरमाने लगे, जाना कहीं नहीं है, बस एक बार दिखा दे मेरा अली ऊपर कहाँ है, बस एक बार। एक मरतबा सुलझना ने गर्दन को उठाया, हुसैन की निगाह पड़ी, हाय हुसैन की निगाह पड़ी, सभा पर आया, ऐ शबीह है पैगंबर, खुदा हाफिज, ये कहकर हाथों को छोड़ा, हुसैन जमीन पे गिरे। गिरते ही बाबा सुलझना, तूने मेरी बड़ी खिदमत की, बस आखिरी एक काम और कर दे। सुलझना ने गर्दन को हिलाया, कहा, मौला आप हुक्म तो कीजिए, बस ज़ियारत कीजिएगा, मातम कीजिएगा, मौला हुक्म तो कीजिए। कहने लगे बस एक काम कर, तो ये कहीं नहीं होगी, उसे मैं नजर आ नहीं रहा होगा, बस तू एक काम कर, खैमे पे चला जा, वो खुद समझ जाएगी उसका भैया कहाँ है। अब जो सुलझना दौड़ता हुआ चला, मेरे खैमा पर आया, सीने पे सोने वाली आई, हाथों को गर्दन में डाला और एक जुमला कहा, ऐ सुलझना, मैं ये नहीं पूछूंगी मेरा बाबा कहाँ है, बस इतना बता, पानी पिया या प्यासा दुनिया।
बीच में आ जाओ لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين
Ya Hüseyin